Students, we'll start the new chapter, data handling. Okay, now if you see into your textbook, there are 4 informations here given. The first information is runs made by the batsman in last 10 matches. The second is number of wickets taken by a bowler, marks scored by students of your class in mathematics unit test, and number of storybooks read by each of your friends. Okay, now the information when collected in all the cases, okay, that is known as data. So if I want to collect the information of runs made by batsman in last 10 matches, उस collection को data कहते हैं. Okay, or I want to find out the marks scored by the students of your class in math subject, वो collection of that information is called as data. Okay, now to find this, what happens is you have to organize the data in a systematic manner and then interpret it accordingly. So ये data अगर आपको समझना है तो पहले उसको systematic manner में रखना पड़ेगा. मैनर में रखने के बाद उसको समझना पड़ेगा कि what that data wants to tell you. Okay, now this data can be represented graphically. इसको graphically आप represent कर सकते हो ताकि आपको एक ही ऐसे देखते ही पता चल जाए. It will give you a clear idea what it represents. Okay, now if you want to represent it graphically, there are different types of graph. Okay, some of the graphs you are learned in earlier classes also. That is, the first one is a pictograph. Now in pictograph you have got pictorial representation of data using symbols. उसमें हम symbols use करते हैं data को represent करने के लिए, जो हमारे पास collection of data है उसको. Okay, suppose हमें ये एक pictograph दिया गया है. इस पिक्टोग्राफ में यहाँ पे क्या दिया है, एक कार दी है, उसके आगे लिखा है 1 कार इज इक्वल टू 100 कार्स. ओके, अब ये सारे मंथ्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. जुलाई में कितने कार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और हाफ, राइट. सो दैट मीन्स दिस वन इज 100 प्लस 100 एंड दिस इज हाफ, सो इट इज 200 प्लस हाफ ऑफ 100 इज 50. सो 250 कार्स in the month of July. उसके बाद August you have got 3 cars, so 100 plus 100 plus 100, that is 300. Similarly September you have got 400, right. Now how many cars were produced in the month of July, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि 250. कौन से मंथ में मैक्सिमम कार्स प्रोड्यूस हुए, September. So this is what the pictograph helps us. Just by looking at it up you can answer so many questions. Okay, so that is how graph is useful to us. Now just turn the page. Now we go to the next type of graph, that is a bar graph. Now in bar graph what happens, you have a display of uniform information using bars of uniform width and their height being proportional to the respective values. बार ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करते हो तब एक बात याद रखना है कि ये सबकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, दैट शुड बी सेम. इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. हाँ, द हाइट, ये जो हाइट दिख रहा है वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कौन सी क्या है. सो हाइट तो हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, पर ये विड्थ जो है वो सेम रहता है. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर आर 2 एक्सिस, ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है ग्राफ का. ना ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस. इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं. और ये जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस कहते हैं. दिस इज नोन एज अ y axis. Okay, हमेशा x axis और y axis पे you have got different informations depending on the data. आपका डेटा कौन सा है उसके ऊपर आपको यहाँ लिखना है. अब हम यहाँ पे x axis पे क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, और y axis पे क्या दिया है, एकेडमिक ईयर्स. ओके, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में यहाँ 0 से स्टार्ट किया है और दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 50. हर एक सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स का बना हुआ है, 50 का. ओके, सो अगर आप लिखते हो कि यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, वाई एक्सिस पे आपका मेजरमेंट क्या है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ 1 सेंटीमीटर, अब ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये जो एक स्क्वायर है, दिस 1 स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. सो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये 0 है तो ये 50 है, 100 ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में यू हैव 10 लाइन्स.
अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, इसके बीच में 10 लाइन्स है और ये जो बीच वाला लाइन है ना वो 5th लाइन है, वो उसका मिड पॉइंट है। ओके, सो ये 5 होगा, ये 0 होगा और ये 10 होगा, तो ये क्या होगा, 5 होगा। ओके, सिमिलरली अगर ये 0 है और ये 50 है तो ये क्या होगा, 25। ओके, फाइन। So now we come back to the graph. Now here if you see the years, कौन से years हैं, 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, then 6, 7, 7, 8, इतने सारे साल यहाँ पे दिए हैं, ये एकेडमिक ईयर्स। ओके, अब इसको देख के हमें पता लगाना है जो हमें क्वेश्चन पूछा है। ओके, नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो हमें इस इंफॉर्मेशन कौन से दिए हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। कौन से ये सब ईयर्स में, इतने सारे साल में कितने स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में, दैट इन्फॉर्मेशन हमको ये ग्राफ को देख के मिलता है। ओके, अब मैं पूछूँगी 2003-4 में कितने बच्चे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो आपको ये देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे 100 बच्चे थे, देयर वर 100 स्टूडेंट्स। 4-5 में कितने हैं, 200। 5-6 में कितने हैं, तो यू कैन सी हियर, यहाँ से आपको ऐसे लेके जाना है, तो इट इज़ 250। दिस इज हाउ यू रीड द ग्राफ। ओके, नाउ इन विच ईयर इंक्रीज इन द स्टूडेंट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से ईयर में है, 2007-8 में। इन विच ईयर, ओके, नाउ इफ यू इन विच ईयर द इंक्रीज ऑफ द स्टूडेंट इज मैक्सिमम, कौन से साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ 100 से लेके यहाँ पे 200 पहुँचा है, यहाँ पे 200 से 250, यहाँ 250 से 300 और 300 से 350। तो इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, 100 से 200, मतलब 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। कौन सी ईयर के बीच में, 3-4 और 4-5 के बीच में। बाकी सब में देखोगे तो ओनली 50-50 इंक्रीज हुए। ओके, और देन यू हैव टू जस्ट फाइंड, देयर बी अनदर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग 5 और 6। 5-6 का देखो, ये 5-6 का कितना है, 250। इज इट ट्वाइस दैट ऑफ 3-4, 3-4 में 100 है, ये 100 है, ये 250 है। इज इट ट्वाइस, नो, ट्वाइस मतलब 200, ये तो 250 है, मतलब ट्वाइस से भी ज़्यादा है। ओके, फाइन। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ बार ग्राफ, जिसमें दो थिंग्स यू कैन, मतलब यू कैन हैव डबल बार ग्राफ वेर यू हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ डेटा। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेट ऑफ डेटा था, अब वी हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ डेटा इन वन ग्राफ। ओके, अब हाउ डू यू मैनेज दैट, लेट अस सी दिस। अगर अभी आप ये ग्राफ देखते हो, सो ऑन दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मैथ्स, एसएस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। वाई एक्सिस पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, ये एक सिंगल स्टूडेंट का ग्राफ है। अब यहाँ पे लिखा है, ये जो स्क्वायर है 5-6 का है, ये डार्क वाला स्क्वायर है वो 6-7 का है। मतलब ये जो है वो 5-6 की वैल्यू है 2005-2006 की, और ये वैल्यू जो है 2006 और 2007 की है। मतलब एक सिंगल स्टूडेंट का मैथ्स का 5-6 में कितने मार्क्स थे और 6-7 में कितने मार्क्स थे, इसको हम डबल ग्राफ कहते हैं। अब देखोगे तो मैथ्स में 5-6 में कितने मार्क्स है, 30, और 6-7 में कितने हैं, 60। एसएस में 5-6 में कितने मार्क्स हैं, 50। ओके, और 6-7 में कितने हैं, तो आप देखोगे तो ये 60 और 50 के बीच में है, दैट मीन्स इट इज़ 55। इफ़ यू सी दिस, इट इज़ बिटवीन दिस टू, सो इट इज़ 55। Like this you have to interpret the graph and answer the questions. So what is the information given by the double graph? In this, that is the comparison of different subjects of which year, 2005 and 6, 2006-7. Okay, in which subject the performance has improved the most. अब इसको देख के बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बार ग्राफ को देख के। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये तो सेम ही है, यहाँ पे देखोगे तो पहले से कम है, यहाँ 1, 2, 3 में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से में हुआ है, मैथ्स में हुआ है। क्योंकि आपको देखते ही पता चलेगा कितना हाइट का डिफरेंस है, 30 में से डायरेक्ट 60 पहुँचा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट हैज़ डिटोरिएटेड, किसमें गॉन डाउन हुआ है ग्राफ, तो इंग्लिश में। पहले मार्क्स अच्छे थे, अब मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। ओके,
नाउ इन विच सब्जेक्ट इट इज़ एट पार, मतलब सेम. तो यू कैन सी इन हिंदी पहले भी वही मार्क्स थे, अभी भी वही है, सेम है मार्क्स. सो ग्राफ को देख के आपको ये सब पता चलता है. ओके, नाउ there's a question in think, discuss and write. If we change the position of a bar graph, would it change the information? Yes. अगर height of a bar graph change करते हो then the information changes. अगर आप height change नहीं करोगे that means the information will remain same. Bar graph का information is always based on the height. हमेशा उसके height पे उसका information based होता है. Okay. अब next है this, try this. You have to draw a graph with an information. Okay, that is question number 1. Question number 1 में क्या दिए, months दिए है यहाँ पे. Okay, that is July, August, September, October, November, December. और number of watches कितने sell किए हैं वो हमें plot करना. Okay, अब मैंने लिया है x axis पे I have taken months और y axis पे हमेशा ये numbers लेते हैं. हमेशा numbers कहाँ पे लेना होता है, y axis पे. So 1 centimeter is equal to 200 watches. That is what I have plotted here. Okay. Now if you see this here I have taken months on the x-axis. July, August, September, October, November, December. Here on y-axis number of watches. अब number of watches में मैंने 0 से I have taken, this is 0. So 0 से 200 मतलब 1 centimeter is equal to कितने watch है, 200, 200. So 200, next will be 400, then will be 600, 800. So each centimeter is of 200 watches. This is how I have plotted the graph. Okay. Now, what is the first reading? First reading है July में कितने हैं, 1000. So if you see this in July, बार ग्राफ है तो बार ग्राफ को आपको एक ये विड्थ आपको सेम रखना है. 1000 है मतलब कहाँ पे पहुँचेंगे, 1000 मतलब where is 1000 here? Wait, just a minute. So 1000 is here. So July में how many watches are there? 1000. Okay. Now for the month of August. August में कितने हैं? 1500. Right? अब 1500 कहाँ पे मिलेगा? This is 1000, 1200, 1400. This is 1600. तो 1600 और 1500 के बीच में this is 1500. तो आपको यहाँ तक लेके जाके ऐसे मार्क करना पड़ेगा ना. Okay. And then what you have to do is take the scale and then draw a line like this. So now this will be your 1500, this is your 1000. Similarly for the month of September. अब month of September के लिए you have here 1500 again. Okay. So for month of September again, if you see here this between 4000 and 1400, 1600. Again this is your 1500. Okay. So again you have to take the scale and join it here like this, 1000. Okay. Now for the month, next month, you have got month of October, it is 200. Okay. So 200 it is here, it's 2000, sorry, month of October it is 2000. So 2000 it is here. So I have marked it here. Okay. So next I will be joining this for the month of October, 2000. Okay, right. So for November it is 2500. अब 2500 कहाँ होगा? That is 2400, 2600 के बीच में यहाँ पे. So this is your 2500. For month of December it is again 1500. So this is your 2000. This is your 2500 and this is your 1500. So like this you make the bar graphs. Okay. Now we will go for the next bar graph. Now in this next bar graph you have got children who prefer cycling and walking, school A, B and C. Okay.
Now for school A, B and C, here if you have to draw two bar graphs, double bar graph, because cycling और walking दोनों है. साइकिलिंग और वॉकिंग में कैसे किया है, पहले मैंने स्कूल A, B, C, यहाँ पे 3 स्कूल्स ले लिए. ओके, अब साइकिलिंग कितने स्टूडेंट्स करते हैं स्कूल A के 45, वॉकिंग कितने करते हैं 40, स्कूल B के वॉकिंग कितने करते हैं 55, साइकिलिंग कितने करते हैं 25, स्कूल C के वॉकिंग कितने करते हैं 15, साइकिलिंग कितने करते हैं 35. तो हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन ऐसे लेना है y एक्सिस पे. सो ये तुम्हारा y एक्सिस है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने 5 स्टूडेंट्स. और हमको कहाँ तक जाना है, तो 55 तक है. सो 55, सो आप 60 या 65 तक जा सकते हो. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वॉकिंग कितना है 40. ओके, so this is my walking and this is my cycling. So this is 40. Can you see this? This is 40. Cycling कितने हैं 45. So you can see this is 45. This is of school A. वैसे school B you have got 55 and 25. So this is 25 cycling. This is 55 walking. Similarly of school C, here you have got 35 those who are walking and you have got 15 those who are cycling. Okay. Now for this graph all of you will draw on your own. I'll just give you the hint of ODI teams of 8 top cricket teams. Again here you have to draw a double bar graph. Double bar graph का question है ये. Okay. एक में ये आएगा वर्ल्ड कप का 2006 का और दूसरे 2007 का. ओके, तो ये जब सब टीम्स है ना, ये सारे टीम्स आपको एक्स एक्सिस पे बताने हैं. कितने टीम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स है, तो यहाँ पे 8 टीम्स बताने हैं आपको. ओके, और जो परसेंटेज है रन्स का, ओके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% लेना है. जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिया है ना, यहाँ पे 5% लिखना है. ये क्या होगा परसेंटेज होगा और यहाँ पे कंट्रीज होगी. यहाँ पे कितने बार ग्राफ है 1 2 और 3, बिकॉज यहाँ पे 3 स्कूल्स है. अब यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यू हैव 8 कंट्रीज हियर. 1 country, 2 country, 3 country, 4 country, 5 country, 6 7 8, like this you have got 8 countries here. और 8 countries का you will have bar graph. Okay, thank you.